Good morning. Namaste, myself Manju Sharma with Hina Bardeva, we both welcome you in today's video class. As on 7th January, there was vaccination camp held in our St. Paul Higher Secondary School. after which we declared winter vacation for all the students. Hope so you are enjoying this winter vacation. But we wanted you to utilize this time as one of the best phase of your life. So this is the reason we both are present here today with the most important topic, that is tips on girls' safety. To begin with, girls should always stay strong physically and mentally. Staying strong mentally, let's begin with this topic. How to stay mentally in today's time. Like many of the things happen in our daily life. Like if you talk about family issues or friend issues or any other extra stuffs which happen to our daily life, जो हम लोग अक्सर किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. But this is one of the greatest dangerous part of our part. लाइक हम बेसिकली जो अपने माइंड में सोचते रहते हैं, ये एक तरफ से बहुत ही बड़ा नेगेटिविटी है. यू शुड ऑलवेज सर्च फॉर आवर एल्डर्स टू शेयर योर थिंग्स. हाँ, डर लगता है हमें कि हम किस तरीके से शेयर करें, विच इज़ एक्चुअली योर मेंटालिटी. काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते हैं पर वो चीज़ होता नहीं है. दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज सर्च फॉर समवन to share your problems or issues, whether it can be of any type of problem. Never be shy of sharing anything. Now let's talk about physically. How to stay strong physically. Like basically if we will talk about the monthly problems of girls, we feel shy to share with anyone. Many of the families, ladies are not there, राइट, बट वी हैंडल विथ आवर ओन सेल्फ. जो चीज़ बहुत ही बुरा है, काफ़ी बार होता है जो वो एक गैप में हो जाता है जिसको हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए. डोंट ईट जंक फूड्स, एवॉइड इट. जैसे जंक फूड्स खाना, लाइक मोमो, चाउमीन, जो हम लोग अक्सर पसंद करते हैं, वो चीज़ स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही डेंजरस है. क्योंकि आफ्टर 30 कहीं ना कहीं गर्ल्स का जो एक बोन होता है ना, वो वीकेंड होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है. ड्यू टू विच many of the girls after 30 they starts having problem with the back pain or with the body pain, which is actually it's our because of our careless. So we should always have someone to share with. Not if you are not comfortable with it कि तुम लोग किसी के साथ share करना चाहते हो, then you are learning in a school, you can share with your teachers or you can share with someone else to your neighbor side or to your family. Don't be careless for it. So stay strong physically and mentally. In addition, wearing of clothes. Wearing of clothes, it is one of the best part of our personality. हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छे से रेडी होके चलेंगे तो ये हमारी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लाता है. बट डू यू थिंक सो विच एक्चुअली ब्रिंग्स इट? कहीं भी आप लोग कुछ भी कपड़ा पहन के चले जाते हो, उठने बैठने में डू यू फील कंफर्टेबल? थिंक वंस येस और नो. बट विच इज़ एक्चुअली shows low confidence in us only. So इसीलिए कपड़े वैसे ही पहनो जो तुम्हें कंफर्टेबल करे. ओके, वेयरिंग ऑफ द जीन्स, पैंट्स, नो प्रॉब्लम. आज की जनरेशन में एवरीथिंग इज मॉडर्नाइज्ड, वेरी गुड. बट वी शुड ऑलवेज बी कंफर्टेबल दैट व्हाट वी आर वेयरिंग इन अ सोसाइटी. एंड ऑल्सो कहीं भी आप लोग जाते हो, इट हैपन्स ना कि आप अच्छा मतलब कितने लोग गलत नज़र से देखते हैं. इट्स नॉट अबाउट हाउ वी आर वेयरिंग इट, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन देयर फूल्स दैट हाउ दे आर लुकिंग ऑन इट. So be comfortable. I just want to say whatever you are wearing, always be comfortable of wearing it. Whether it is kurta, whether it is sari, whether it is pant, jeans, anything. Okay? So that's what I wanted to explain. Don't be low confidence on it. Furthermore, activate your sixth sense. Sixth sense is one of the best part of our activities. Sixth sense जो अक्सर हमें अच्छे बुरे की पहचान कराता है. One of the best example I can say, हम लोग ऑटो में जब ट्रैवल करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ना जो गलत टच करते हैं, मज़ा उठाते हैं एंड ऑल, विच इज़ एक्चुअली यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर इट. नॉट फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि थप्पड़ मार दो या कुछ भी कर दो, बट चुप मत रहना.
ऑलवेज एक्टिवेट योर सिक्स सेंस। काफ़ी लोगों का नज़रिया गलत होता है, छूने का तरीका गलत होता है। सो ये चीज़ को कभी भी नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि एक बार नेगलेक्ट करोगे दूसरी बार होगा, दूसरी बार नेगलेक्ट करोगे तीसरी बार होगा, जो तुम्हारे अंदर लो कॉन्फिडेंस लाएगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर you. You should always show yourself strong, bold in front of all the people, in front of the society. Otherwise, they will start criticizing you, which is actually one of the worst part of women, because women themselves, they dominate themselves, which is actually not good for the society. अपने लिए आवाज़ उठाओगे, सामने वाले को समझाओगे, सामने वाला करेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट. लिटरेट विल ऑलवेज हैव द सेंस ऑफ इट, जो चीज़ हमेशा करना चाहिए. In conclusion, focus on your career. फोकस ऑन योर करियर. सोचने में कैसा लगता है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, मैनी ऑफ देम दे आर फेसिंग विद द फाइनेंशियली प्रॉब्लम, क्योंकि आज की डेट में मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बट वेयर देयर इज़ डेडिकेशन, वेयर देयर इज़ डिटर्मिनेशन, देयर इज़ नेवर एक्सक्यूजेज और रीजन्स. नेवर थिंक ऑफ इट. हमेशा यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिविटी. अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आई हैव टू डू इट. कहा ना, जिसके अंदर डेडिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, उसके पास रीजंस और एक्सक्यूजेस कभी नहीं होते हैं. डोंट थिंक ऑफ इट. सो हैव फोकस इन योर करियर, क्योंकि करियर नॉलेज से मिलता है. नॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच नो वन कैन बाय इट. समझ में आया? स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहेगा. इफ हिस्ट्री उठा के भी देख सकते हो, मेनी ऑफ द नेशनल लीडर्स दे फाउट फॉर इट. गर्ल्स एजुकेशन के लिए कितने लोगों ने फाइट किया. शादी के लिए हटाया गया, दैट अंडर 18 इट शुड बी प्रोहिबिटेड. उस टाइम पे इतना फाइट किया गया, लेकिन अब जाके वापस वो चीज़ रिपीट हो रहा है, जो चीज़ गलत है. एक टाइम पे इसी चीज़ के लिए फाइट किया गया था, बट टुडे दे हैव मेड दिस वन एज अ फैशन, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड for your thing. Basically, remember the first point, physically and mentally. It affects to your physically and mentally also. So think about it. Girls, try to follow these tips in your daily life. Okay, it will be very helpful. Somewhere, if you will try, if you will, you yourself, you will feel good for it. तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा. एंड येस, नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, दिस थिंग कैन बी हैपन विद द बॉयज ऑल्सो, क्योंकि ये सब चीज़ सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं होता है, बॉयज लोगों के साथ भी होता है. सो गर्ल्स एंड बॉयज, you are the youngsters, you are the youths, you are the future of the country. You should think for it. So students, next time we'll be back with a more and most interesting topic. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you.